Hello students, in this video I am explaining you how to solve a maximization problem using simplex method. So the first step towards solving the linear programming problem, which is of maximization type, we need to first standardize the problem. Here an example is taken, which is a case of maximization. Maximize z equals to 40x1 plus 35x2. This is the objective. These two are the constraint equations, and here we have the non-negativity condition. Now first step towards solving the problem is standardization of the problem. What is meant by standardization is that we have to convert the inequalities given in the constraint equation into equalities. How we will go about that? Let's take the first constraint equation, which is 2x1 plus 3x2 less than equal to 60. Now in order to convert it into an equation, we will add a variable known as slack variable on the left hand side. So this is the left hand side of the equation, this is the right hand side. We will add one variable denoted as S1 in the left hand side to convert it into equality. Now this equation is now equal to 60. This equation, what does this mean is that either 2x1 plus 3x2 is equal to 60 or 2x1 plus 3x2 is less than 60, right? Less than equal to है, इसको हम दो तरीके से ऐसे लिख सकते हैं. First equation says that it is equal to and the second says it is less than. Now in case the first equation is true, it means that the value of S1 will be 0. अगर 0 आ जाएगी, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, S1 0 हो गया तो दैट मीन्स 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 60. दिस इक्वेशन विल बी ट्रू. अदरवाइज S1 की कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. अगर ये वाली इक्वेशन ट्रू है तो S1 विल हैव सम पॉजिटिव वैल्यू. सो दैट्स वाई दिस S1 इज इंट्रोड्यूस्ड in this equation to convert the inequalities into equalities. So convert कैसे हुई अब ये? The first constraint equation is now 2x1 plus 3x2 plus s1 equals to 60. तो ये हमारी conversion हो गई. Standardization of problem हम इसको बोलते हैं, convert करने को. This variable is known as slack variable. Why the word slack? Because left hand side is having some you can say slack or some difference. That's why it is lesser than the right hand side. कुछ ना कुछ इसमें कमी है, तभी ये right hand side के equal नहीं है, इसलिए इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा. और वो क्या चीज़ ऐड करेंगे? slack को ऐड करेंगे. If we add the slack variable, this will become equal to right hand side. Now see what are the properties of slack variable. Slack variable का जो contribution है that is 0. Contribution is 0. Now what is meant by contribution? You see the objective function. This is the objective function. इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं, x1 इज़ डिसीजन वेरिएबल, x2 इज़ डिसीजन वेरिएबल, इनके आगे जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन. सो स्लैक वेरिएबल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 0 है. इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर. x1 का कॉन्ट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना है? 40. x2 का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 35, राइट. ये जो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस हैं इनमें इन वेरिएबल्स x1 के आगे जो वैल्यू गिवन है 2, दैट इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट्स.
x2 के आगे जो वेरिएबल है दैट x2 वेरिएबल के आगे जो वैल्यू है 3, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x2 in equation 1. These are the resource values. Okay, now see how we are going to solve this question. So first step we have done, that is we have standardized the problem. We have converted equation 1 and this is the equation 1 after conversion. Similarly we will convert equation 2 and the objective function as well. The second equation will become 4x1 plus 3x2. Here we will introduce slack variable and the slack variable will now be s2 equals to 96. And what will be our objective function? Objective function will be maximize z equals to 40x1 plus 35x2. This will remain same. Now we have two more variables that we have added and their contribution is 0. So 0s1 plus 0s2. I hope it's clear to everyone that after the standardization of problem, the equations will change into such forms. Constraint equation will now be 2x1 plus 3x2 plus s1 equals to 60, and the second equation is 4x1 3x2 plus s2 equals to 96, where x1 x2 they are greater than equal to 0. So we have done the first step, that is standardization of problem. Now this problem is our standardized problem. Second step, our second step is obtaining the initial feasible solution, or you can say forming the initial table. We will now form the table which gives an initial solution to the given problem. This is our given problem. We will be forming a matrix, a table sort of. Here we will write all the variables given in the question. We have total 4 variables, x1, x2, s1 and s2, that we will write here, x1, x2, s1 and s2. Above these values, these are called bases. Here we will have BI values, or you can say resource values, the values given in the right hand side of the question. Above these values I am writing the contribution of these variables. Contribution of x1 is 40, contribution of x2 is 35, contribution of s1 is 0. Similarly, contribution of s2 is also 0. Okay, here we will write s1, s2. These are like first constraint equation, this is our second constraint equation. So in first constraint equation, if we put x1 x2 equals to 0, then s1 will become 60.
तो here we will write S1 is equal to 60. Similarly in second equation S2 will be 96. If x1 and x2 is put equal to 0, then S2 will become equals to 96. So S2 is equal to 96. इनके आगे जो हम वैल्यू लिखते हैं दैट इज़ दी कॉन्ट्रीब्यूशन, और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 0, राइट। ये जो बॉक्स बना है बीच में, इसमें जो है हम इन्हीं इक्वेशंस को देखते हुए जो कोएफिशिएंट्स हैं, इनके वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे। सो लेट्स सी द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में x1 का कॉन्ट्रीब्यूशन है 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2। x2 का कॉन्ट्रीब्यूशन है 3, तो सॉरी कोएफिशिएंट है 3, तो वैल्यू इज़ 3। S1 का कोएफिशिएंट है 1, सो हियर वी विल राइट 1, and because there is no S2 in equation 1, constraint equation 1, so the value is 0. Now in second equation, second constraint equation, the coefficient of x1 is 4, of x2 is 3, and there is no S1, that's why the value is 0, and S2 the value is 1. So we have written this. Now we have to see, our third step is testing the optimality. We have to see whether we have arrived at the answer or not. How we are going to check whether we have arrived at an optimal solution? For that, first we have to calculate Zg. How Zg is calculated? The contribution of these variables, that is 0 here, in this case it is 0. Similarly, the contribution of this variable is also 0. We multiply the contribution with the coefficient. Okay, here also we will multiply the contribution with the coefficient and add those values. In this case, in this particular case, the contributions are 0. That's why if we multiply 0 with anything, the value will be 0 only. So here the values will be 0. See again how Zj is obtained, calculated. We have to multiply the contributions with the coefficients. x1 वाली कॉलम का हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x1 से रिलेटेड जो कोएफिशिएंट्स हैं 2 और 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम कंट्रीब्यूशन से। इनसे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज़ आएंगी उनको हम ऐड करेंगे। सो इन दिस केस इट इज़ 0 ओनली। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट the delta J. How delta J is calculated? It is the difference of Cj minus Zj. Cj is given here and Zj is given here. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा J की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो 40 माइनस 0 इज़ 40, 35 माइनस 0 इज़ 35, 0 minus 0 is 0, and this is also 0. Now what is the optimality condition? In case of maximization, because we are discussing case of maximization, so I will tell you about the optimality condition in case of maximization only. The delta J's need to be either negative or 0. तो हमारे ये जो डेल्टा जे की वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं ये या तो नेगेटिव आ जानी चाहिए या ज़ीरो। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ तो ज़ीरो हैं, लेकिन दो वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। दैट्स वाई दिस इज़ नॉट एन ऑप्टिमल आंसर। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप इज़, हमने टेस्ट कर लिया, ऑप्टिमैलिटी कंडीशन चेक करी, एंड द रिजल्ट इज़ दैट द सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल। So what is the next step? Next step is
रिवाइज द टेबल, यानी अब हमको टेबल रिवाइज करनी पड़ेगी, दोबारा बनानी पड़ेगी, न्यू टेबल बनानी पड़ेगी, सो एज टू अराइव एट अ न्यू सॉल्यूशन. So let's revise the table. Now how we will revise the table? We have to see the delta J values, and out of these delta J values we have to find the highest positive value. The decision variable corresponding to this highest value is our incoming variable. तो अभी इसमें डेल्टा जे में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आई है हमारी? दिस इज़ द हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू. पॉजिटिव वैल्यू देखनी है हाईएस्ट, तो ये हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिसीजन वेरिएबल कौन सा है हमारे पास? x1. तो x1 हमारा क्या है? इनकमिंग वेरिएबल. सो दिस विल बी अवर इनकमिंग वेरिएबल. क्या मतलब है? ये जो बेसिस हैं, अब ये जो दो वेरिएबल्स थे बेसिस में, एक s1 था और एक s2, इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह ये वाला वेरिएबल, इनकमिंग वेरिएबल जो है, जगह ले लेगा. ठीक है, तो अभी हमको ये तो मालूम पड़ गया कि इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है, लेकिन इन दोनों में से वो किसको रिप्लेस करेगा? हाउ वी विल डिटरमिन? वी विल कैलकुलेट द रेशियोज हेयर. रेशियोज कैसे कैलकुलेट होंगी? देखिए, ये जो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो ये जो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू वाला जो हमारा कॉलम है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड अवर की कॉलम. ये हमारा की कॉलम होता है. और इस की कॉलम की जो ये कोएफिशिएंट्स हैं, जैसे इसमें है 2 और यहाँ पे है 4, ये वैल्यूज़ जो हैं, ये बी आई वैल्यूज़ को हम इनसे डिवाइड करेंगे. दैट मीन्स 60 विल बी डिवाइडेड बाई 2, द वैल्यू विल बिकम 30. सिमिलरली 96 डिवाइडेड बाई 4, द वैल्यू विल बी 24. अब ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं, रेशियोज़ आई हैं हमारी, इनको भी ऐसे एक सेपरेट कॉलम में हम बनाएंगे. तो ये जो रेशियोज़ हैं, इन रेशियोज़ में हमको कौन सी देखनी है? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू of the ratios and the variable corresponding to this value. Is our outgoing. ये वाला वेरिएबल जो है हमारा आउटगोइंग वेरिएबल हो जाएगा. तो लीस्ट वैल्यू कौन सी है हमारी इसमें? 24 इज़ द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है दैट इज़ s2. तो s2 विल बी रिप्लेस्ड बाय x1. ओके, जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू वाली जो रो है, ये वाली जो रो है अब हमारी, दिस रो इज़ आवर की रो. और जहाँ पे ये की रो और की कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस पर्टिकुलर बॉक्स इज़ एंड दी वैल्यू कंटेनिंग दिस बॉक्स इज़ की एलिमेंट. ये हमारा की एलिमेंट है. ओके, नाउ वी हैव टू फॉर्मुलेट. अब हमको पता चल गया कि कौन सा वेरिएबल, s1 तो वहीं रहेगा, s2 की जगह x1 आ जाएगा. नाउ वी हैव टू फॉर्मुलेट द न्यू और रिवाइज्ड टेबल.
यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं सेम रहती हैं, ये कभी चेंज नहीं होंगी, x1 x2 s1 s2 एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन विल ऑल्सो रिमेन सेम 40 35 0 एंड 0. यहाँ पे BI वैल्यूज़ आएंगी और यहाँ पे हम रेशियोज़ कैलकुलेट करते हैं. नाउ S1 विल रिमेन सेम एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो 0, वो भी सेम रहेगा. दीज आर कॉल्ड बेसिस. जो S2 है उसकी जगह जो अब हमारा न्यू वेरिएबल है दैट इज़ x1. नाउ वी हैव टू फाइंड दीज वैल्यूज़. अब ये वैल्यूज़ हमको निकालनी है, ये सारी वैल्यूज़, राइट. सी हाउ दीज विल बी कैलकुलेटेड. First we will be writing that row which was the key row in our previous table. इस टेबल में हमारा की रो ये वाला की रो है. तो सबसे पहले अब जब नई रो बनेगी, यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ लिखेंगे नई टेबल में, तो ये जो की रो वाली जो वैल्यूज़ हैं ये लिखी जाएंगी. हाउ वी विल राइट, वी विल डिवाइड these values 4 3 0 1 and 96 बाय की एलिमेंट. जो हमारा की एलिमेंट है, की एलिमेंट कितना है 4. इस 4 को लेके हम पूरी रो को जो है 4 से डिवाइड कर देंगे. सो व्हेन वी डिवाइड दीज बाय 4, जो नई रो आएगी दैट वी विल राइट हियर. सो 4 डिवाइडेड बाय 4 द वैल्यू इज 1. 3 डिवाइडेड बाय 4 3 बाय 4. 0 will remain 0, then 1 by 4, and 96 divided by 4 is 24, right. How these values will be determined, इनको कैसे निकालेंगे. This was the key element, right. तो की एलिमेंट से जो ऊपर की वैल्यूज़ हैं या नीचे जो वैल्यूज़ हैं, वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू 0 एंड की एलिमेंट वैल्यू विल बी 1. ठीक है, की एलिमेंट की जो वैल्यू है, जो नई टेबल बनती है उसमें उस वैल्यू को तो 1 बनाना होता है और जो उससे ऊपर या नीचे वैल्यूज़ हैं उनको हमको 0 करना होता है, राइट. तो यहाँ पर ये देखिए, ये वैल्यू तो 1 हो चुकी है. अब यहाँ पे हमको इसको 0 लेके आना है. हाउ वी विल डू, फर्स्ट वी विल राइट द ओल्ड रो विच इज़ गिवन इन द प्रीवियस टेबल. प्रीवियस टेबल से हम वैल्यूज़ देखेंगे 2 3 1 0 एंड 60. वी विल राइट हेयर 2 3 1 0 60. Then we will write the new row. This is the new row which is in the new table. So this is 1 3 by 4 0 1 by 4 and 24. And our objective is to make this value, that is the first value, to be 0. हमको first value 0 बनानी है. तो वो कैसे बनेगा, if we multiply these by 2 and subtract it from the old row, right. 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा. 2 minus 2 will become 0, right. तो अब हम इसको ऐसे कर देते हैं, -2 से पूरी रो को मल्टीप्लाई करते हैं. तो -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स -2. दिस विल बिकम -3 by 2. दिस विल रिमेन 0. दिस विल बिकम -1 by 2 and this will be -48. And after subtracting this, our row will be 3 minus 3 by 2. This is 0. These will cancel out. 3 by 2, 1 minus 1 by 2 and 12. Now we will write these values in our table here. Right. We will now calculate the ZJs. The contribution of x1 is 40. How we will calculate ZJ? Same procedure. We will multiply these with this with this,
and we will add them. So 0 multiplied by 0 is 0, 40 multiplied by 1 is 40. When we add them, the result is 40. 0 multiplied by this value is 0, 40 multiplied by this is 30. This will again be 0 and this will be also 0. The sum will also be 0. 0 multiplied by this is 0, 40 multiplied by this is 10. Now we have to calculate delta j, that is ये जो वैल्यू है 40 उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है. दीज आर आवर सी जेज. तो 40 माइनस 40 इज़ 0, 35 माइनस 30 इज़ 5, 0 एंड 0. नाउ वी हैव टू टेस्ट इफ दिस सोल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट. ऑप्टिमल कब आएगा? जब ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव या ज़ीरो हो जाए. तो अभी एक पॉजिटिव वैल्यू है अभी इसमें, दैट्स वाई दिस आंसर इज़ नॉट ऑप्टिमल. तो आंसर ऑप्टिमल नहीं है तो वी विल हैव टू अगेन रिवाइज द टेबल. रिविजन कैसे होगा टेबल का? सेम प्रोसीजर, दैट वी विल बी चूजिंग द हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू. ये हमारी हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये वाला वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा? इनकमिंग वेरिएबल. ठीक है, ये इनकमिंग वेरिएबल है. ये हमारा क्या है? की कॉलम है. इस की कॉलम की जो ये वैल्यूज़ हैं इनसे इनको डिवाइड करेंगे. 12 डिवाइडेड बाय 3/2, दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2/3. तो दिस वैल्यू बिकम्स 8. 24 डिवाइडेड बाय 3/4 मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 4/3. दिस वैल्यू इज़ 32. और इसमें से कौन सी वैल्यू लेनी है हमको? लीस्ट पॉजिटिव. तो लीस्ट पॉजिटिव है ये वाली वैल्यू. इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है S1, दिस इज़ आवर आउट गोइंग वेरिएबल. और ये जो रो है दिस इज़ आवर की रो एंड दिस इज़ आवर की एलिमेंट. नाउ वी विल फाइंड द न्यू टेबल. सेम प्रोसीजर इज़ नाउ फॉलोड. ऊपर वेरिएबल्स सेम रहेंगे, x1, x2, s1, s2. देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो सेम. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू हेयर? वेरिएबल कौन सा आ जाएगा बेसिस में? बिकॉज नाउ s1 इज रिप्लेस्ड विद x2, सो वी विल राइट x2 हेयर and this x1 is as it is, so this will be x1. What are their contributions? This is 35 and this is 40. Now we have to find out the values of this box. So first जो हमारी की रो होती है, ये हमारी की रो थी, इसी की वैल्यूज़ डिटरमिन होंगी. कैसे डिटरमिन होती हैं? जो की एलिमेंट होता है उस की एलिमेंट से पूरी रो को डिवाइड कर देते हैं. सो 0 इज़ डिवाइडेड बाई 3/2. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये वाली वैल्यू हमको 1 बनानी है और ये वाली वैल्यू हमको 0 करनी है. तो इसको 3/2 से डिवाइड करेंगे पूरे को. सो लेट्स सी व्हाट आर द वैल्यूज़. सो 0 डिवाइडेड बाय 3/2 इज़ 0. दिस बिकम्स 1. दिस बिकम्स 2/3 एंड -1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 इज़ -1/3. 12 डिवाइडेड बाय 3/2, दिस इज़ 8. These are BI values. Okay, and to calculate these values हमें क्या करना है? यहाँ पे 0 लेके आना है. तो हमें क्या वही ऑपरेशंस करने होंगे कुछ जिस तरह से ये किए थे. सेम वी हैव टू फर्स्ट राइट द ओल्ड रो. ओके, ओल्ड रो यानी पुरानी टेबल में जो x1 की रो वाली वैल्यूज़ हैं, यानी ये 1, 3/4 ये वैल्यूज़ लिखनी है पहले हमको. सो वी विल राइट 1, 3/4, 0, 1/4 एंड 24. उसके बाद हमको क्या लिखना है? वी हैव टू राइट न्यू रो. न्यू रो मीन्स जो हमारी नई जो मैट्रिक्स बनी है उसमें जो ये वैल्यूज़ हैं, जो नई ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये हमको इसमें लिखनी है.
Okay, so the new row is 0, 1, 2/3, -1/3 and 8. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे 0 आना चाहिए, यानी ये जो वैल्यू है इधर ये 0 आनी चाहिए. तो ये 0 कैसे आएगी, अगर हम इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, तो यानी कि पूरी की पूरी रो को -3/4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आवर पर्पस विल बी सॉल्व. तो -3/4 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा. दिस विल बिकम -3/4, दिस विल बिकम -1/2, minus and minus, this will be plus 1/4, this will become -6. Okay, now see what we have obtained here. This will become 1, these will cancel out, which was our purpose. This will become 1/2 and this will become 18. Now we have to write these values here. So this is 1, 0, -1/2, 1, 1/2 and 18. Calculate the value of Zj. 35 multiplied by 0 is 0, 40 multiplied by 1 is 40. If we add these value, this comes out to be 40. 35 multiplied 1 is 35, this is 0 and the total is 35. 35 70/3 minus 20, this comes out to be 10/3. Okay, so this value is 10/3. Here it is -35/3 plus 20, this becomes 25/3. So these are the Zj values. Now we have to calculate delta J. So we will subtract the Cj values from Zj values. So 40 minus 40 is 0, 35 minus 35 is 0, 0 minus 10/3 is -10/3, 0 minus 25/3 is this. Now we will check whether this solution is optimal or not. डेल्टा जे की वैल्यूज़ अब क्या है, नेगेटिव हैं और 0. So these are two zeros, these are negative values, that means this is the optimal solution. ये हमारा optimal solution आ गया है. अब इस solution में देखिए values क्या क्या आई हैं. x2 की वैल्यू कितनी है, 8, x1 की वैल्यू क्या है, 18. यहाँ पर जो values given है ये, these are the values of the variables. जो basis में नहीं है, जो वेरिएबल बेसिस में नहीं है उनको बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल, और जो बेसिस में आते हैं इनको बोलते हैं बेसिक वेरिएबल. तो बेसिस में जो वैल्यूज़ हैं ये, तो वो तो हमें टेबल से पता चल जाती हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं, राइट. तो यहाँ से ये वैल्यूज़ पता चल गई हैं. और जो हमारे ये दो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये इसमें नहीं आए हुए, तो इनकी वैल्यूज़ कितनी है, 0. तो अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ लिखेंगे. x1 इज़ 18, x2 इज़ 8 और s1 s2 क्योंकि बेसिस में नहीं है तो इनकी वैल्यू क्या है, 0 है. और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 40x1 प्लस 35x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2, तो उसमें इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 1000. s1 s2 की अगर कोई वैल्यू आ भी जाती तो भी ऑब्जेक्टिव में उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होता, बिकॉज देयर कंट्रीब्यूशन इज़ 0. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन with the help of simplex method. I hope it's clear to everyone. If there is any doubt, please contact me. Thank you.